Hello and welcome, my dear friends. Today we'll be talking about IUPAC nomenclature of bicyclo compounds. In previous video we talked about alicyclic compounds. This is now bicyclo compounds. If you are new to my channel, I wish you will subscribe my channel and share it if you like my videos. Now, what are bicyclo compounds? When two rings are fused at two carbons. When two rings are fused at two carbons, compounds formed are called bicyclo compounds. Bicyclo compounds. For example, हमारे पास है ये एक ring. We have another ring attached to it over here. So these are the two rings which are fused together but at two carbon atoms. So these are the two rings which are fused together at two carbons. Such compounds are called as bicyclo compounds. Now in this bicyclo compound we have one more example over here, if you can write it. Now these are the two rings, pentagon and triangle. These are basically having fused at two carbons, so we call it a bicyclo compound. Now before naming these compounds I must tell you, जो ये वाले कार्बन्स हैं जहां पे फ्यूज हुए हैं, we call them bridge head carbons. So this is basically called as bridge head carbon. Bridge head carbon. So this is also bridge head carbon, and these are the bridges. ये जो तीन bridge head carbon से यहाँ जाते हैं आप, या यहाँ जाते हैं आप, या यहाँ से जाते हैं आप, these are called as bridges. So these are actually bridges. Same here, these are the bridgehead carbons, and this is one bridge, this is the next bridge, and this is the third bridge. Sometimes you can have carbons in the bridge, sometimes you cannot have. For instance, अगर आप यहाँ देखेंगे इस ब्रिज में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है. इस ब्रिज में 2 कार्बन है, 1 और 2, और इस ब्रिज में कोई भी कार्बन नहीं है. So we can have carbons or we cannot have carbons in one of the bridges. So now how do you name these bicyclo compounds? So they are named as, so we are having the prefix first of all, that's called bicyclo. Then you write in square brackets count number of carbons in bridges in descending order separated by dot, मतलब फुल स्टॉप. फिर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है, मतलब आपको नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करना है जो ब्रिज में है, उनको लिखना है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में. फिर एंड दे आर सेपरेटेड बाय डॉट, मतलब फुल स्टॉप. उसके बाद आपको जो है हाइड्रोकार्बन नाम लिखना है, द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन नेम. दिस इज बेसिकली the name of bicyclo compounds. I will exemplify it. For instance, हमारे पास एक example है. So we have this example. This is a bicyclo compound. Why? Because there are two carbons which are bridgehead carbons over here, and these are the three bridges, one bridge, next bridge, and third bridge. And now if you name it, you have to write the prefix first, that's bicyclo, and in square brackets you have to count the number of carbons in bridges आपको. and how do you write it? in descending order, मतलब आपके वो कार्बन पहले काउंट करने हैं जो सबसे ज्यादा है. तो इस ब्रिज में कितने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन. सो देयर आर 4 कार्बन इन दिस ब्रिज. आपको ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है, बल्कि वो वाले कार्बन को काउंट करना है जो ब्रिज में है. सो काउंट नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिजेस. सो आई हैव नॉट रिटन हियर ब्रिज हेड कार्बन. सो काउंट नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिजेस and write in descending order, which should be separated by full stop, that's here. So we have 1 2 3 4 carbon, so 4 dot. अब इसमें कोई कार्बन नहीं, लेकिन इसमें 2 कार्बन है, 1 और 2, so then 2 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, because there is no carbon in this bridge.
सो काउंट नंबर ऑफ कार्बन्स इन ब्रिजेस, ठीक, एंड राइट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप, दैट इज दिस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद आपको लिखना है हाइड्रोकार्बन नेम। हाइड्रोकार्बन नेम मतलब ये कि आपके इस कंपाउंड में कितने कार्बन इन टोटल है उसका नाम लिखना है। मसलन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है इसमें, सो 8 कार्बन मीन्स ओक्टेन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस बाइसाइक्लो कंपाउंड। सो बाइसाइक्लो फर्स्ट यू हैव टू राइट, उसके बाद काउंट करने नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रिजेस एंड राइट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर सेपरेट बाय फुल स्टॉप। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है। उसके बाद आपको हाइड्रोकार्बन नाम लिखना है, मतलब इस बाइसाइक्लो कंपाउंड में इन रिंग्स में, इन 2 रिंग्स में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आते हैं। अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। अगर 8 कार्बन आते हैं तो ओक्ट आएगा, अगर 6 कार्बन तो हेक्स आएगा वर्ड रूट। उसके बाद आता है एन प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स भी आ सकता है। सो ऑल दोज थिंग्स आर रेस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर, तो वो सारे के सारे वही रहेंगे। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स एक्सेट्रा, वो सारे वही रहेंगे। सिर्फ आपको इस चीज को जो है एक्स्ट्रा यहां पे लिखना है। नाउ वी विल हैव अनदर एग्जांपल। So this is a bicyclo compound having 2 carbons over here. Now if you kept here methyl group, so this is important now. Yeah, before putting here methyl, I'll give you the name of this compound first. Now see, it's a bicyclo, so the name will be bicyclo. Then how many carbons in bridges? 1 2 3 4 carbon, 1 carbon, 0 carbon. Then there is 1 2 3 4 5 6 7, so it's hept, word root, सारे single bonds मतलब N. This is the name of compound. Now अगर किसी रिंग पे अब सबस्टिट्यूएंट अटैच होगा या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, सो यू हैव टू इंडिकेट व्हाट इज द पोजीशन नंबर ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। उस तरीके से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। सो व्हाई डू यू नंबर? सो यू मस्ट नंबर द चेन। सो नंबरिंग इज डन फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन, वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन, मतलब आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन। क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन 2 होते हैं, एक ये दूसरा ये, तो आपको स्टार्ट करनी है नंबरिंग फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन, या यहां से या यहां से। लेकिन जाना कहां से फिर है? गोज थ्रू अ लार्जर रिंग देन स्मॉलर and then the smallest bridge. फिर आपको जाना है थ्रू अ लार्जर ब्रिज फर्स्ट, देन स्मॉलर ब्रिज, लास्टली आपको जाना है स्मॉलेस्ट ब्रिज। मतलब पहले लार्जर ब्रिज से जाना है, फिर स्मॉलेस्ट ब्रिज से जाना है स्मॉलर, फिर सबसे छोटा जो ब्रिज होगा through that you can go then. So this is how you number it. So numbering is done from one of the bridgehead carbons, and then you must move through the larger bridge first, then the smaller, then the smallest. This is how you number it, and accordingly आपको identify हो जाएगा कि आपका position number उस सबस्टिट्यूएंट का क्या होगा। हम example लेंगे। We are having example over here. So this is basically a bicyclo compound having 2 bridgehead carbons over here. यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप डाल दिया है। तो कैसे नंबरिंग करेंगे आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिजहेड कार्बन्स। अगर हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, बिकॉज आपको जाना है थ्रू द लार्जर रिंग, ठीक। यू हैव टू गो थ्रू द लार्जर रिंग। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, देन टू स्मॉलर ब्रिज, वो ये वाला है, ये 6 बनेगा, ये 7 बनेगा, ये 8 बनेगा, ठीक। यहाँ इस ब्रिज में कोई कार्बन है ही नहीं, तो यू कैन नॉट काउंट दैट। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसका नंबर क्या आया सबस्टिट्यूएंट का? 8। अगर आप इस वाले ब्रिज हेड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द पोजीशन नंबर? यहां मैं फिर से बना रहा हूं, ये आई एम मेकिंग इट अगेन। यहां पे मिथाइल ग्रुप है, तो इफ यू डू इट्स नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन, दिस ब्रिज हेड कार्बन 1, तो आपको यहां से जाना होगा टू द लार्जर ब्रिज 4 5 एंड देन 6, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 8। अब इसमें देखिए आप, जब आपने इस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करी थी तो इस सबस्टिट्यूएंट का नंबर 8 आया, ठीक। जब अपने इस ब्रिज हेड कार्बन से, मतलब इस ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की तो इस सबस्टिट्यूएंट का नंबर 7 आया। सो इट गेट्स द लोवेस्ट नंबर, सो दिस इज द करेक्ट numbering and this will be the incorrect
numbering. So this is not the true numbering, this is the correct numbering. इस हिसाब से आपको नाम देना है. तो कैसे देंगे आप नाम? 7 पे मिथाइल है तो सबस्टिट्यूट का पहले आपको प्रीफिक्स करना है. So it is 7 methyl. Then there is bicyclo. Then there is 1 2 3 4 carbons, 2 carbons, then 0 carbon in this bridge. Then there is कितने कार्बन टोटल? 8 है. So oct, सारे सिंगल बॉन्ड मतलब n. This is the name of compound. I hope you understand it. We'll take one more example. We will take here one more example. So these are the two bridgehead carbons. Now आपको यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, यहाँ पे Br ग्रुप है, तो you have to number it first to identify what is the position number. आप यहाँ से अगर नंबर स्टार्ट करेंगे तो this carries significance over bromide because this becomes principal functional group. So this is 1, this is 2, 3, 4, 5 and 6, then 7. अगर आप यहाँ से करेंगे नंबरिंग, so 1 2 3 4, इसका पोजीशन नंबर 5 आएगा. So इसका पोजीशन नंबर ज्यादा आता, तो this is the correct numbering. So this becomes a substituent, so it's 7 bromo bicyclo. This OH group is here a primary principal functional group. इसका ऐसे नाम आएगा 7 bromo bicyclo. Then कितने कार्बन्स? 1 2 3 4 4. कितने कार्बन्स? 1. कितने कार्बन इस ब्रिज में? कोई नहीं, 0. Then there is कितने कार्बन्स in 2 rings? 7 means hept. सारे सिंगल बॉन्ड्स means n. अब E हमको ड्रॉप करना है because 2 पे all है, so it's 2 all. Because O is the vowel, so you have to drop the E, so it becomes heptan 2 all. I told you all these rules in previous videos. अगर आपको वो videos देखने हैं, you can watch my playlist wherein we have basically kept GOC chapter 2. उसमें आप देखेंगे IUPAC nomenclature right from beginning. Then you have one more example over here. यहाँ पे आप डालेंगे साइनाइड. ठीक, तो यहाँ पे है जो है आपका Br है, तो आपको यहाँ पे सपोज आपका जो है डबल बॉन्ड है, तो कैसे नंबरिंग करेंगे आप? सो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रिजहेड कार्बन या ये है या तो ये है. सो यहाँ से स्टार्ट नंबरिंग हो सकती है, यहाँ से स्टार्ट नंबरिंग हो सकती है. साइनाइड इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एज कम्पेयर टू Br, सो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3. यहाँ से भी जितना यहाँ से भी 4 कार्बन है ब्रिज में, यहाँ से भी 4 कार्बन है, बट ही विल गो टू दिस वे बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आता है 3 4 5 6, then 7, then 8, then 9 and then 10. Now 4 पे ब्रोमो है, so it's 4 bromo. Then bicyclo. Then यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ से भी 4 कार्बन means 4.4. इस ब्रिज में कोई कार्बन नहीं मतलब 0. Then you have how many carbons in total? Word root 10 means deck. ठीक, deck. अब n नहीं आएगा because there is in डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो 5 पे in है, तो 5 in. Then 2 पे जो है Cn है. आपको पता होना चाहिए जब साइनाइड होता है, साइनाइड का IUPAC नेम जो होता है दैट इज नाइट्राइल, बट व्हेन कार्बन इज नॉट काउंटेड इन चेन, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा टू द रिंग, वी कॉल इट कार्बोनाइट्राइल. इन प्रीवियस वीडियो जब हमने पढ़े थे एलिसाइक्लिक रिंग्स, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि अगर अल्डेहाइड ग्रुप है तो कार्ब अल्डेहाइड आएगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो कार्बोक्सिल एसिड ही है, अगर अमाइड ग्रुप है तो कार्बोक्सिलामाइड आएगा, अगर एसिड हैलाइड है तो कार्बोनिल हैलाइड आएगा, अगर आपका जो है एस्टर आएगा तो एल्काइल कार्बोक्सिलेट आएगा. सो दीज आर द नेम्स. सो इट्स कार्बोनाइट्राइल. कार्बोनाइट्राइल इज द नेम. यहाँ पे C इज कॉन्सोनेंट, सो E पूरा आएगा यहाँ इन, तो दिस इज द नेम ऑफ कंपाउंड. वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड डालता हूं, यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप है, तो यहाँ पे एक और OH ग्रुप है. ठीक, यहाँ पे Br ग्रुप है. तो हाउ डू यू नेम दिस कंपाउंड? सीधी सी बात है, आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है. ये हाइड्रोक्साइड्स और ब्रोमाइड है, दीज आर द सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स एंड दिस द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप. सो यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिजहेड कार्बन्स. सो या तो यहाँ से करेंगे या तो यहाँ से करेंगे. बेटर इज टू डू हियर थ्रू दिस वे बिकॉज इसका नंबर जो है कम आएगा. 2 3 4, then 5, then 6 7 8, then 9 and then 10. नाउ 5 पे हाइड्रोक्साइड है, 10 पे हाइड्रोक्साइड है, 8 पे Br है. B is the bromo, means comes first alphabetically, so it's 8 bromo. Then 5 10 dihydroxy.
डाइहाइड्रोक्सी। सो सबस्टिट्यूएंट्स का नाम आ गया, अब वर्ड रूट है, अब पहले बाइसाइक्लो आएगा, देन देयर आर ब्रिजेस 440 बिकॉज यहां से भी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड देयर इज इन दिस ब्रिज नो कार्बन सो इट्स 0। देन डेक है, डेक इज द वर्ड रूट। अब इन है, इन इज एट 6 पोजिशन, सो 6 इन, देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो इट्स 2 carboxylic acid. This is how you name these compounds. I hope you understand it. I hope you understand it. So we'll take another example. So these are the two bridgehead carbons. यहाँ पे मैं methyl डालता हूँ, and this is here C2H5 that is ethyl. तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड आएगा, यहाँ से जो है आपका C double bond O and then there is OCH3. So this is the ester group over here. So you cannot do numbering from here because in bicyclo compounds you have to number from one of the bridgehead carbon. So या तो यहाँ से या तो यहाँ से, अगर अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे it will be 1, it will be 2 and it will be 3. 1 2 and then 3. So इसका नंबर 3 आता है। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 and 3, यहाँ से भी 3 आता है। अब मसला ये है कि we will go by alphabetical order. इसका अगर देखा जाए तो E है, इथाइल है, इसका अगर देखा जाए तो H हाइड्रोक्साइड है। So E comes first then H, so we will go with this numbering. So it's 1 2 3 4 because there is choice. You can go this way, यहाँ से भी 3 आता है, यहाँ से भी 3 आता है। अब हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, यहाँ पे E आता है इथाइल, यहाँ पे H आता है हाइड्रोक्साइड, so we will E comes first then H, so we will go this way 1 2 3 4 then 5 then 6. Now this is the substituent having M H E, so E comes first, so it's 2 ethyl, then 4 hydroxy. But one thing I should tell you, जब भी आपके पास एस्टर ग्रुप आता है, एस्टर ग्रुप का जो R है that is to be named first, so it's methyl at the top. So पहले आपको methyl ही लिखना है, उसके बाद लिखेंगे आप 2 ethyl 4 hydroxy. ये मिथाइल कौन सा आया? एस्टर का मिथाइल। सो मिथाइल पहले एस्टर का, उसके बाद 2 ethyl 4 hydroxy 6 methyl again, then bicyclo, then इस ब्रिज में कितने कार्बन? 1 2 3, इस ब्रिज में कितने कार्बन? 1, इस ब्रिज में कितने कार्बन? 0. देन व्हाट इज द वर्ड रूट? 6 मींस हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड मतलब एन। अब इसका क्या नाम आएगा? कार्बोक्सिलेट, सो इट्स EN 3 कार्बोक्सिलेट, 3 कार्बोक्सिलेट। आई होप यू अंडरस्टैंड बिकॉज 3 पे कार्बोक्सिलेट एस्टर ग्रुप है, तो इट इज 3 कार्बोक्सिलेट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। So this is how you name these compounds. You can have one more example. The last example we shall be quoting over here is this is a bicyclo compound having 2 bridgehead carbons over here. This is C double bond O NH2 amide group है ये। तो यहाँ पे आपका जो है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, तो यहाँ पे भी आपका OH ग्रुप है, तो यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है। तो how you name this compound? You can always number it from one of the bridgehead carbons. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, this becomes 2, this becomes 3. अगर आप यहाँ से करेंगे 1 2, यहाँ से भी 3 आएगा। no sorry, ठीक है, it's very nice. Why? Because आपको जो है you cannot number this way, you have to number this way, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन्स है, ब्रिज बड़ा ये है, ये छोटा ब्रिज है, तो you have to do it like this way 1 2 3 4 5 6 then 7 then 8 and then 9. This is how you can number it. This is how you can number it. But point is, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे इस ब्रिजेट से, तो ये आएगा 1. So we can again make it over here. यहाँ से C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप है, यहाँ से आपका डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से आपका OH ग्रुप है, तो यहाँ से जो है आपका OH ग्रुप है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप है। तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. अब देखिए, जब हमने इस ब्रिजहेड से नंबरिंग स्टार्ट करी थी तो इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नंबर 8 आया था। जब आप इस ब्रिजहेड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इस जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसका भी नंबर क्या आया? 8 आया। तो देयर इज नो इश्यू इन दैट, बट द पॉइंट इज जब आपने यहां से स्टार्ट किया था तो वी हैव द क्लोजर
2 substituents gets lowest number. अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जो इनका नंबर आता है ज्यादा, सो लोवेस्ट सम रूल इसमें फॉलो नहीं होगा बल्कि इसमें फॉलो होगा. सो विल यूज दिस नंबरिंग. सो व्हाट इज द नेम नाउ? नेम इज हाइड्रोक्सी. यहाँ पे है हाइड्रोक्सी, यहाँ पे है, यहाँ पे मिथाइल M है, तो इट विल बी 2,5 डाइहाइड्रोक्सी, 2,5 डाइहाइड्रोक्सी, then 3 methyl, then bicyclo, then 4.3.0. इसमें 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 कार्बन, इसमें कोई कार्बन नहीं. 430. then what is the word root? 9 means none. then N नहीं आएगा, इन आएगा, वो भी 6 पर, 6 कार्बन पे, so it is 6 इन. then 8 पे क्या है? कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड. This is how you can name these compounds. Because amide का नाम क्या आता है? जब ये एलिसाइक्लिक रिंग या रिंग से अटैच होगा तब उसका नाम आता है carboxamide. This is how you can name these bicyclo compounds. If you like my videos, please do not hesitate to subscribe my channel, share it as much as you can, and comment it to improve my channel, and then press the like button to like it. I'll come up with more such videos hopefully. In the next video we'll be talking about spiro compounds, how they are named as far as IUPAC nomenclature is concerned. Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.